عجیب سی سچویشن ہے جس میں پہلے تاثر یہ جا رہا تھا کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اس فیصلے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, جج صاحب نے کو ٹائم چاہیے, چھٹی پر ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس فیصلے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس فیصلے کو اناؤنس فوری طور پر کیا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ شاہزیب صاحب, اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فیصلہ بس ایسے ہی آگے ہو گیا ہے تو وہ تو خیر اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. اب دیکھیے یہ ڈیٹس کہاں سے آتی ہیں, پہلے غالباً 26 دسمبر تھی, پھر 6 جنوری تھی, تو یہ ڈیٹس کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ڈیٹس عدالتی عملہ دیتا ہے, عدالت سے جنریٹ ہوتی ہیں. لیکن جو اس کے پیچھے اصل بات تھی یا اصل خبر تھی جب پہلی دفعہ یہ مؤخر کیا گیا تو وہ یہ کہا گیا کہ جی وہ تو ویسے ہی ڈیٹ ہے. ایکچولی اس دفعہ اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے اندر کوئی قانونی سکم پروسیجر کے حوالے سے نہ رہے, اور جو حکومت ہے یا جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو ٹھیک ٹھاک سزا ہوگی. اور اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ اس دفعہ کوئی ضابطے کی خلاف ورزی نہ ہو. جیسے عمران خان صاحب کی کنوکشنز پہلے ہوئی, الیکشن سے 2 دن پہلے ہیریڈلی کیا گیا اور مذاق بنایا گیا نظام انصاف کا, پھر اس کا نتیجہ جو سامنے آیا وہ بھی سب کو پتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شاہزیب صاحب اگر ایکویٹل کا کیس ہو, اگر کسی کو سزا نہ دینی ہو تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. مینلی بات یہ ہوتی ہے لیک آف ایویڈنس ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اوپر فیصلے کر لیے جاتے ہیں. اگر کسی کو کنوکٹ کرنا ہو تو پھر آپ کو چیزوں کو ایک سے دوسری سے تیسری کو جوڑنا پڑتا ہے. اس کے اندر جو پرنسپل کیس ہے وہ ہے ابیوز آف پاور لیڈنگ ٹوورڈز کرپشن. اب کیا وہ اسٹیبلش ہو پایا ہے یا نہیں یہ صرف آؤٹ کم سے ہی پتہ چلے گا. لیکن اب جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ کوئی 15 جنوری کے قریب یہ فیصلہ آ سکتا ہے. 15 جی, اور ظاہر تاریخ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 13 جنوری کو شاید فیصلہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کو یہ فیصلہ آ سکتا ہے. آسما شرازی صاحبہ, اب ایک یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید جب مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا اسٹانس کچھ سافٹ ہو, سوشل میڈیا پر سافٹ نظر آئے تاکہ کم از کم مذاکرات کسی طرف بڑھے, کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں. آج انہوں نے صحافیوں سے بات کی, پھر ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا بہت سخت ہے اور ظاہر عسکری قیادت کو ڈائریکٹ ان کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب کہ کیا کوئی توقع نہیں ہے عمران خان صاحب کو, یا یہ سمجھا جائے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں؟ دیکھیے شاہزیب, عمران خان صاحب ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. جب ان کو ان کے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے پوری فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہی انہوں نے کیا بھی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دن تک ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں ہوا, اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یا ایک طرح سے ایک CBM ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے نہیں تھا. لیکن اب اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر پورا پریشر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ ان کو مل سکیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مذاکرات کے اندر جو کہ پہلے بہت جلدی آپ کو نظر آ رہی تھی کہ فوری طور پر کچھ کہہ رہے تھے کہ مسکرانے کے دن آ گئے ہیں, حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم مل بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا. پھر آپ نے اسپیکر صاحب کا کردار دیکھا, پھر ایسا کیا ہوا ہے کہ حکومت بھی پیچھے ہٹی ہے اور خود پاکستان تحریک انصاف بھی پیچھے ہٹی ہے, اور وہاں سے جو شرطیں آ رہی ہیں لکھنے کے حوالے سے یا تحریری مطالبات کے حوالے سے, اور یہاں سے جو شرطیں نہیں بتائی گئی حکومت کی طرف سے, اور وہ یہی ہیں کہ اس دفعہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب تحریری طور پر کچھ دیں گے تو اس کے بعد آگے بڑھے گا معاملہ, ورنہ آگے نہیں بڑھے گا. تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس پوری سچویشن کے اندر اپنا جو پریشر ہے وہ اس کو بڑھائیں گے, اور اس کو اس حد تک ضرور بڑھائیں گے کہ حکومت جو ہے وہ جو 20 جنوری کی جادوئی تاریخ ہے جس کا کہ شاید کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن باقاعدہ امپاور ہوگی, اور اسی طرح سے حکومت بھی انتظار کر رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد کیا ہوگا. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک اس طرف بڑھے اور دونوں طرف سے ٹائم بائے کیا جا رہا ہے. یہ صرف عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے ان کو مورد الزام ٹھہرانا اکیلے کہ وہ ٹائم بائے کر رہے ہیں, حکومت بھی ٹائم بائے کر رہی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرف یہ اونٹ جو ہے وہ بیٹھے گا یا کس کروٹ بیٹھے گا. تو اس دوران میں عمران خان صاحب اپنے یہ جو ٹولز ہیں جو کہ ان کے پاس ایک ٹیکٹکس ہے کہ وہ ایک
प्रेशर बिल्डअप करते हैं और वो अपना एक सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, अपने बयान के ज़रिए से करते हैं, अपनी टीम के ज़रिए से करते हैं, वो ये कंटिन्यू रखेंगे ताकि अगली तारीख तक जो मुज़ाकरात हैं, जो भी मैसेजिंग होनी है वो वाया मीडिया हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये उनका लाएअमल है, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसका कि वो बहुत मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते रहे हैं और शायद अब भी कर रहे हैं। ये बड़ी आम बात है मुनीब, क्योंकि ज़ाहिर 20 जनवरी के पर, और ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ इस बात को कोई छुपा रही हो, उनके जो अपना पूरा सोशल मीडिया है वो तो बाकायदा तौर पर इस पर कैंपेन कर रहा है, जो रिचर्ड गैरल हो या कोई और हो उनको बाकायदा तौर पर प्रमोट करना, फिर पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स करना कि क्या हो रहा है और उम्मीदें लगाना कि ट्रंप इंतजामिया आएगी तो मामला ठीक होंगे, कि अभी हुकूमत को भी इंगेज करके रखा जाए और दूसरी तरफ प्रेशर भी बिल्ड किया जाए। और इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया के जरिए भी और साथियों से गुफ्तगू में भी ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। तो असल में मुज़ाकरात बहाना ही है, असल में नजरें इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की भी ट्रंप इंतजामिया पर है। शाहजेब साहब, इमरान खान साहब दरअसल इस वक्त एक ब्लैंक चेक चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको जेल से रिहा किया जाए लेकिन बगैर किसी पाबंदी के किया जाए। और मैं आपको बड़े कैंडिड वर्ड्स में बता देता हूँ और ये खबर के तौर पर कि हुकूमत का सबसे बड़ा खदशा ये है, ये सबको पता है इमरान खान साहब रिहा भी हो गए तो उससे हुकूमत नहीं गिरेगी। हुकूमत तो तब गिरेगी जब एस्टेब्लिशमेंट गिराना चाहेगी, हुकूमत नहीं गिरेगी। लेकिन हुकूमत को सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर इमरान खान साहब बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के बाहर आते हैं और आकर वो ये जलसे जुलूस रैली शुरू कर देते हैं तो उससे धचका लगेगा मईशत को भी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज स्काई रॉकेट कर रहा है ये नोज डाइव पे चला जाएगा और बहुत सी चीजें खराब हो सकती है। लिहाजा एक अनसर्टेनिटी की फिजा तो हुकूमत नहीं चाहती। लेकिन ये जो अमेरिका वाला चैप्टर है शाहजेब साहब, इस पे बड़ा हैविली डिपेंड इमरान खान साहब तस्लीम करें या ना करें, लेकिन उनका एक जो फॉरेन चैप्टर है वो तो बड़ा हैविली डिपेंड कर रहा है। और वो ये समझते हैं कि हालात बदल जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी शख्सियत है कि वो किसी जलसे में, किसी जुलूस में, किसी गैदरिंग में ट्विटर के जरिए कोई ऐसी स्टेटमेंट जरूर दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है जो इमरान खान साहब के हक में हो, या वो इस निजाम को या रियासत पाकिस्तान को चार्जशीट कर सकते हैं। बिकॉज आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर तैयारी मैं कहूँ या जो यहाँ पर माहौल है वो ये है जी कि अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम मेजर लिया भी गया तो उस पर हमारी पोजीशन यानी रियासत पाकिस्तान की पोजीशन इमरान खान साहब की तरफ नरम नहीं पड़ेगी बल्कि शायद मजीद सख्त हो जाएगी। अभी तक जो बात मैं हमेशा आपके सामने करता रहा हूं कि ये मुज़ाकरात की तो अहमियत बस इतनी सी है कि ये बैठ जाते हैं या सिलसिला चल पड़ता है, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास लेवरेज नहीं है तो जो एक्चुअल डिविडेंड है वो इन मुज़ाकरात से निकल नहीं सकता। पॉलिसी वो है जो आज तक तब्दील एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की इमरान खान साहब से। नहीं तो किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है शाहजेब साहब, एक आधी बेल होनी है और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, कौन से मुज़ाकरात की जरूरत है। सो बेसिकली इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो शायद हुकूमत के कुछ लोगों की ख्वाहिश ये भी है कि एटलीस्ट हमारी लेजिटिमेसी जरा एस्टैब्लिश होती है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है और हमने सियासी माहौल बेहतर करने के लिए छोटी मोटी कोशिश की है। लेकिन फ्रैंकली कोई इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुज़ाकरात हो और उससे कोई बड़ा मेजर और बड़ा अच्छा आउटकम निकले। अगर ऐसा होना हो तो फिर इमरान खान साहब को और भी जेस्चर्स दिए जाए कि उनके लिए सजाएं खत्म कर दी जाए, उनके लिए माहौल ठीक कर दिया जाए। अगर ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला उनके हक में आता है और वो बरी होते हैं फिर हम यकीनी तौर पर ये नुक्ते जोड़ सकेंगे। लेकिन अगर ये फैसला उन्हें चार्ज कर देता है, कन्विक्ट कर देता है, फिर तो हालात बहुत खराब है। और आसमा, मगर इस सब में ज़ाहिर हुकूमत की तो ये ख्वाहिश है कि अगर मुज़ाकरात का कोई मस्बत नतीजा निकले, ब्रेक थ्रू हो, तो ये गारंटी मिले उन्हें कि उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा। मगर ये ऑन पेपर इस बात पर कमिट कर भी लें, हो भी जाए, तो आपको लगता है ये मुमकिन है इमरान खान साहब बाहर आए और कहें कि जी ठीक है फिर हुकूमत टाइम पूरा करें, जब हमारी बारी आएगी फिर देखेंगे, इलेक्शन का माहौल देखेंगे, 2027 की अंडरस्टैंडिंग कर ले कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, ये मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब गारंटी दें और कोई भी उनकी ये गारंटी नहीं दे सकता कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएंगे, वो घर बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ के सिर्फ लूडो खेलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब वो सियासत कर रहे हैं और उनका एक सियासी हक भी है कि वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी जिस तरह से उस वक्त की PDM ने किया वो उस तरह की कोई मूव कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि वो एहतजाज करें या जिस तरह से भी उनके मामलात हैं उसको आगे बढ़ाएं। उनका जो असल पर्पज
पर्पस होगा वो बाहर आके वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा जो हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी जो सुरताल है वो मिलाएं, क्योंकि उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो चीफ है, जाहिर है कि इनकी टेन्योर जो है वो अगले 3 साल के लिए तो 4 साल के लिए तो है, और इस बात के ऊपर उनको कोई वो भी नहीं है कि इससे उनकी कोई बरतरफी हो जाएगी। लिहाजा उनका जो मैक्सिमम जो उनका पर्पस होगा वो ये होगा कि उनके साथ मुज़ाकरात को जो है या उनके साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको बहाल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमेशा से जब वो पॉपुलर थी, जब एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पॉपुलर थी, तो उनको नजर आ रहा था कि वो कभी पावर में नहीं आ सकती, मगर अब वो अगर पावर में नहीं आ सकते तो इसका मतलब ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात खराब है। तो इमरान खान साहब की गारंटी खुद इमरान खान साहब भी नहीं दे सकते कि वो बाहर अगर रहते हैं तो वो घर बैठे रहेंगे और वो खामोश बैठेंगे। और मेरा ख्याल है ये दो चीजें हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट भी गारंटी चाहती है और खुद हुकूमत भी ये गारंटी करेगी। आपने देखा होगा उस दिन जो वजीर आजम ने बात की कि मेरे दिल में कुछ वसवसे आ रहे हैं लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, ये वसवसे खामखा के वसवसे नहीं थे। इस वक्त की जो हुकूमत है वो अंडर प्रेशर है और उनको ये लगता है कि किसी भी वक्त जो है वो पांसा पलट सकता है। इसी तरह से उनको इस बात का भी अंदाजा हो सकता है या खुद एस्टेब्लिशमेंट या जो पावरफुल कॉरिडोर्स है अगर वो कहें कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि ट्रंप इंतजामिया के बाद जो है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ये हो नहीं सकता। उनको लगता है वो अंडर प्रेशर है इस वक्त कि इमरान खान साहब की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीदें हैं वो बेजा नहीं है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। हाँ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के पास और हुकूमत के पास भी कुछ कार्ड्स हैं और वो कुछ पत्ते जो हैं वो अपने वक्त आने पर खेल सकते हैं, मगर उससे पहले ये जो गारंटी देना या लेना, खास करके अगर आपने देखा हो कि आज जो कैंपेन चली है, आपने जुल्फी बुखारी साहब का ट्वीट देखा हो और दीगर लोगों का ट्वीट देखा हो, जिस तरह से यूएई की गवर्नमेंट या उनके फरमारवा या उनके जो भी यहाँ पे वो कर रहे हैं ज़ैद बिन नहयान, उनके लिए जो जुबान इस्तेमाल की गई है, जिस तरह से कैंपेन चली है, उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी अपनी पोजीशन। इससे पहले सऊदी जो उनके मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए या उनकी हुकूमत के लिए जो कहा बुशरा बीबी साहिबा ने, उसके बाद भी क्लैरिफिकेशंस दी गई। तो मेरा ख्याल है कि खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, और ये बड़े की प्लेयर्स हैं, अगर आप अमेरिका को देखें, अगर आप सऊदी अरब को देखें, आप दीगर ममालिक को, माजी में भी पाकिस्तान के जितने भी रहनुमा थे उनके लिए एक फैसिलिटेटर का लाइक इट और नॉट ये किरदार रहा है, हमेशा से एक फॉरेन एलिमेंट रहा है और वो फॉरेन एलिमेंट अब भी आ सकता है। लेकिन आज की जो कैंपेन थी, इसके बाद उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी अपनी पोजीशन। तो क्या इस पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के पास एक वाहिद जरिया ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को किसी ना किसी तरीके से इंगेज करें, भले वो धौंस हो, भले वो धमकी हो, भले वो प्यार हो, भले वो पैगाम हो जो कि बुशरा साहिबा ने दिया अपनी तकरीर के अंदर कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। ये गारंटी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं दे सकते।